آپ کو بتائیں کہ فیصلہ آبادی ہو جائے ہوشیار، 9915 سے آنے والی ای چالان کا ہر میسج اصلی نہیں۔ فیصلہ آباد سیف سٹی اتھارٹی کے نام پر جعلی ای چالان ایس ایم ایس کا انکشاف۔ جعلی ای چالان کے ذریعے شہریوں سے رقم ہتھیانے کی کوشش کی جانے لگی، جبکہ جعلی ایس ایم ایس میں موجود لنک کے ذریعے رقم منتقلی سے سینکڑوں شہری لٹ گئے۔ مشکوک ای چالان ایس ایم ایس آئے تو لنک ہرگز اوپن نہ کریں، جعلی لنک پر رقم جمع نہ کروائیں۔ سیف سٹی اتھارٹی کی شہریوں کو تنبیہ۔ فیصل آباد کے شہریوں کو 9915 سے ای چلان کا جعلی ایس ایم ایس موصول ہونے لگا۔ ایس ایم ایس میں موجود لنک کے ذریعے شہریوں سے ای چلان ادائیگی کی مد میں جعلساز رقم ہتھیانے لگے۔ جعلی لنک سے ای چلان فیس کی ادائیگی کر کے شہری رقم سے محروم ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد سیف سٹی اتھارٹی نے شہریوں سے جعلسازوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ ترجمان سیف سٹی اتھارٹی عائشہ لیاقت کا کہنا تھا کہ سیف سٹی چلان کے میسج میں لنک ہرگز شیئر نہیں کرتا۔ وہیکل کا رجسٹریشن نمبر اور جو وائلیشن ہوئی ہے وہ کلیئرلی مینشن ہوتی ہے کہ فلاں پوائنٹ پہ ہیلمٹ نہ پہننے یا سیٹ بیلٹ نہ لگانے کی وجہ سے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کا چلان ہوا۔ آج کل فیصل آباد کے شہریوں کو جو پریشانی کا سامنا ہے وہ آلریڈی ہمارے نوٹس پہ ہے، ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، ایف آئی اے کو بھی وہ بھجوا دیا گیا، انشاءاللہ وہ جلد ہی مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ جعلسازوں کا میسج موصول ہونے پر شہری ریسکیو 154 ایف آئی اے کے حکام کو اطلاع کریں۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کی سڑکوں پر جدید سفری انقلاب کی تیاری، میٹرو بس منصوبے کو ڈیڈ لائن مل گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا منصوبہ مارچ 2027 تک مکمل کرنے کا حکم۔ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت، کام 3 شفٹوں میں کرایا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افسران کو ٹاسک سونپ دیا، 1835 درخت ری پلانٹ اور 15 کلومیٹر سوئی گیس پائپ لائن منتقلی کی جائے گی، جبکہ 12 بس سٹاپس بھی بنیں گے۔ فیصل آباد میٹرو بس منصوبہ مارچ 2023 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن بروقت یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدر خصوصی اجلاس افسران نے تفصیلی بریفنگ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دونوں ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد ماس ٹرانزٹ پر پیش رفت کا ڈرون فوٹیج کے ذریعے معائنہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 3 شفٹوں میں کام مکمل کروانے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ہدایات۔ 20 کلومیٹر طویل فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 11.1 کلومیٹر اوور ہیڈ برج بنے گا۔ فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے 1835 درخت ری پلانٹ، 15 کلومیٹر سوئی گیس پائپ لائنز کی منتقلی اور 12 بس سٹاپ بھی بنیں گے۔ واضح رہے کہ فیصل آباد میٹرو بس منصوبہ پر 79 ارب لاگت آئے گی۔ نیسپاک کنسلٹنٹ کی زیر نگرانی کام جاری ہے۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں اہم سڑکوں اور سیوریج مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ ان ایکشن۔ کمشنر ڈاکٹر عمران حامد کا 289 نادر خان والی اور جڑا والا روڈ کا دورہ۔ تعمیر و مرمت اور سیوریج اپ گریڈیشن کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ متعلقہ محکموں کو 31 اگست تک منصوبہ مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ 279 نادر خان والے کے مکینوں کے لیے خوشخبری، مرکزی روڈ کی مرمت و بحالی میں سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 ہفتے کی ٹائم لائن مقرر۔ آج سے کام کا آغاز اور 31 اگست تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے موقع کا دورہ کیا اور مکینوں سے ملاقات کی، شہریوں سے مسائل دریافت کی اور حل کے لیے ہنگامی ہدایت بھی جاری کی۔ موقع پر واسا کی مشینری منگوا کر سیوریج کا مسائل حل کروایا گیا۔ چھوٹی ڈی گراؤنڈ کے رہائشیوں کا مسائل حل ہونے کی امید بھی جاگ اٹھی۔ جڑاوالا روڈ سے چھوٹی ڈی کی جانب جانے والے افراد کی سفری سہولیات پر اقدامات کا آغاز۔ کمشنر ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے پرانا سوشل سیکورٹی اسپتال سائٹ سے راستہ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ٹی جوائنٹ سے پہلے مخصوص رستے کا این او سی بھی جاری کر دیا۔ چھوٹی ڈی گراؤنڈ کی طرف نئے رستے کا کام 1 ہفتے میں مکمل ہوگا۔ کمشنر ڈاکٹر عمران حامد شیخ کی جانب سے 279 نادر خان والی اور چھوٹی ڈی گراؤنڈ کے مکینوں کی مشکلات کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کا کال پڑ گیا۔ ڈاکٹرز کی کلینک اور ویلز اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں ڈیوٹیاں۔ نصرت فتح علی خان ہسپتال سے 22 اور سمن آباد ہسپتال کے 12 ڈاکٹرز بھجوائے گئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کے آپریشن روکے، گائنی شعبہ سب سے زیادہ متاثر۔ ایمرجنسی سے آپریشن تھیٹر تک مریض رول گئے۔ حکومت ڈاکٹروں کی کمی پوری کرے، مریضوں کی دعائیں۔ نصرت فتح علی خان ہسپتال سے 22 اور سمن آباد ہسپتال سے 12 ڈاکٹر رورل ہیلتھ سینٹر میں تعینات کر دیے گئے۔ ڈی ایم ایس نصرت فتح علی خان ہسپتال ڈاکٹر مدثر کا کہنا تھا کہ میڈیکل آفیسر اور وومن میڈیکل آفیسر ان میں شامل ہیں، کیونکہ آؤٹ سورس کیے گئے مریم نواز ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نے کام چھوڑا تو بڑے ہسپتالوں سے ڈاکٹروں کو وہاں لگایا گیا ہے۔
इससे एमरजेंसी ओपीडी और अंदरूनी मरीजा में कम मुतासिर हुआ है। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में भी ऑपरेशन मुतासिर हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा गायनी वार्ड में मसाइल दरपेश हैं। जनरल ओपीडी के ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे आउट हुए हैं और एमरजेंसी से भी हमें कुछ लोग निकाल के देने पड़े हैं क्योंकि स्ट्रेंथ पूरी करने के लिए। तो हमने सीओ साहब से रिक्वेस्ट की है भी इस दफ़ा हमें वो जो डॉक्टर्स हमारे गए हैं रिटर्न कर दें, हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी को अच्छी तरह रन कर सकें। अस्पताल में मौजूद मरीज और तीमारदारों का कहना था कि मरीज मर्ज से परेशान होता है, इसके बाद अस्पताल में रश और फिर बड़ी का इंतजार करना पड़ता है। अगर डॉक्टरों की कमी दूर हो तो बर वक्त चेकअप मुमकिन हो सकता है, इसीलिए हुकूमत अस्पतालों पर तवज्जो दे ताकि मरीज मुस्तफीद और जल्द सेहतयाब हो सकें। डॉक्टरों की कमी है, लिहाजा डॉक्टरों की कमी पूरी की जाए। अभी बार बार आगे से चेक नहीं करा सकते, बड़ी मेहरबानी होगी। ये मेरी गर्दन के डिस्क का मसला है, पहले भी अस्पताल में आते हैं, अभी भी आए हैं, वो काफ़ी दिखाया है लेकिन आराम नहीं आ रहा, वो बाद दवाई थोड़ी बहुत मिल जाती है। डॉक्टरों की कमी के सबब जहां मरीजों को मुश्किलात का सामना है, वहीं अस्पताल इंतजामिया से भी अस्पताल का निजाम चलाना मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में गुर्दे के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण रोशन हो गई। हिलाल अहमर पाकिस्तान अस्पताल में जदीद तर्ज का डायलिसिस सेंटर फॉर कर दिया गया, जहां मरीजों के मुफ्त डायलिसिस शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल सुबह के औकात में सहूलत दस्तयाब है। माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नुमान खुर्शीद कहते हैं कि 8 डायलिसिस मशीनें नेगेटिव और 7 पॉजिटिव हैं। जदीद मशीनों और आरओ प्लांट से सेंटर को लीज कर दिया गया है, जबकि जदीद तर्ज का आरओ प्लांट पंजाब भर में मुनफरद है। फिलहाल सुबह के औकात में मरीजों के डायलिसिस शुरू कर दिए गए हैं। जल्द शाम और रात में भी मरीजों के डायलिसिस हो सकेंगे। टीबी के मरीजों के बिलाताब इलाज का इकदाम। फैसलाबाद में 10,000 मरीजों की अद्वियात पहुंच गई। टीबी की अद्वियात तमाम मुतल्लिका इलाज गाहों में मुंतकिल की जाएंगी। नए और पहले से रजिस्टर्ड मरीजों को फराहम की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान चिश्ती का कहना था कि टीबी की अद्वियात तमाम मुतल्लिका इलाज गाहों में मुंतकिल की जाएंगी। नए रजिस्टर्ड और पुराने टीबी मरीजों को अद्वियात फराहम की जाएंगी। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पर पंजाब के शुक्रगुजार है कि अद्वियात की फराहमी अहम इकदाम है। फैसलाबाद में टीबी के मरीजों को बरवक्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान चिश्ती का मजीद कहना था कि मुसलसल खांसी टीबी की अहम अलामात में शामिल है। भूख ना लगना और जिस्म का सुकड़ना भी टीबी की अलामात हो सकती है। शहरी टीबी की अलामात जाहिर होने पर फौरी तिब्बी मुआयना करवाएं। जिला कौंसल टोबा टेक सिंह के रेलवे पर मेहरबानी मुसाफिरों के लिए जहमत बन गई। रेलवे स्टेशन के वॉशरूम की तामीर और मरम्मत का मंसूबा लटक गया। 3 माह गुजरने के बाद भी वॉशरूम की मरम्मत मुकम्मल न हो सकी। फैमिलीज के हमरा सफर करने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मुसाफिरों की जानब से वॉशरूम्स की मरम्मत फौरी मुकम्मल करवाने का मुतालबा। 3 माह गुजर गए, रेलवे स्टेशन टोबा टेक सिंह पर वॉशरूम्स की मरम्मत का मंसूबा पाया तकमील तक न पहुंच सका। वॉशरूम बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहने लगा। इस हवाले से मुसाफिरों का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर वॉशरूम्स की बंदिश फैमिली से एक पेचीदा मसला बन चुकी है। वॉशरूम्स की मरम्मत का मंसूबा फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। वॉशरूम्स बंद होने से रेलवे स्टेशन से दूर जाना पड़ता है। सर जी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਆ रेलवे स्टेशन ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई वॉशरूम का किसी चीज़ का पानी का इंतजाम नहीं है, इसलिए इसको बहाल किया जाए। हाँ जी, ये वाश 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ वाशरूम। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल काशिफ गुज्जर का कहना था कि वॉशरूम्स की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तामीर और मुरम्मत के बाद वॉशरूम्स को मुसाफिरों के लिए खोल दिया जाएगा। मुसाफिरों ने इंतजामिया से वॉशरूम्स की मुरम्मत जल्द खोलने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जंग के बाजारों में बिजली के बेहंगम और लटकती तारों की भरमार। रेल बाजार, फूलों वाला चौक और मेन बाजार में हाई वोल्टेज तारों के खुले जोड़ हादसात को दावत देने लगे। फैसलो हुकाम ने बाजार में आतिशज़दगी की बड़ी वजह नाकस केबल्स को करार दे दिया।
STO सम्यूला कहते हैं कि गुज़श्ता रोज दुकान के अंदर लगने वाली आग भी नाकस केबल के बायस लगी है। जंग में हाई वोल्टेज तारों के खुले जोड़ और बरकी पोल्स के साथ न सिर्फ बिजली के मीटर से भी शहरियों और ताजरों को जानी और माली नुकसान का खदशा। बेहंगम तारों की वजह शॉर्ट सर्किट और आतिशज़दगी के वाकयात का खतरा भी बढ़ गया। ताजरों का कहना था कि फेस्को हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। फेस्को इंतजामिया से मुतालबा है कि बिजली की तारों को फिलफौर महफूज और मुनज़्ज़म किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। 10 बार हमने कंप्लेंट की है कि ये जो बेहंगम तारों का जंजाल बना हुआ है, जो कि शॉर्ट सर्किट का मुझे बनता है, जिसकी वजह से लोगों का घर का चूल्हा बंद हो जाता है। जो इसमें काम करने वाले होते हैं उनका जो करोड़ों रुपए का माल जल कर राख हो जाता है, वो उनका माल नहीं जलता, वो उनका रोजगार जल जाता है। हाँ जी, जो सदर साहब ने कहा है सर, ऐसे ही है, नुकसानात हो रहे हैं। अभी जिसका नुकसान इतना हुआ है कौन अदा करेगा? बस उसके घर के बच्चों के पेट पालने वाले लोगों की वजह। तो आतिशज़दगी के वाकयात करार दी जाती है। फेस्को समीउल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज भी दुकान में आग बिजली की लाइन से नहीं बल्कि दुकान के अंदर मौजूद केबल में खराबी के बायस लगी। उनका मजीद कहना था कि फेस्को की तमाम केबल्स पर बाकायदा टेपिंग की जाती है, ताहम दुकानों के अंदर इस्तेमाल होने वाली गैर मयारी या नाकस केबल्स शॉर्ट सर्किट और आतिशज़दगी का सबब बन सकती हैं। जी, कल एक खीथियां वाले बाजार में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो उस ज़माने में ये है कि हमारे लाइन सुपरिटेंडेंट ने भी और लाइन स्टाफ ने भी साइट भी विज़िट की है, बल्कि मैंने भी विज़िट की है, और हमने वहाँ पे जो इशू नोट किया है ना, वो कंज्यूमर का इंटरनल शॉर्ट सर्किट था, क्योंकि उसके पहले बोझ में आग लगी है, उसके बाद उसने बाय ट्रैवल किया है। तो उसके पे हमारी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना ही हमारे पास कोई उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन आई है। फेस्को हुकाम ने ताजरों को दुकानदारों की अंदरूनी वायरिंग और तारों की जांच पड़ताल करवाने की हिदायत की है ताकि आतिशज़दगी के मुमकिन वाकयात से बचा जा सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े के वासा जंग के सालाना अखराजात 35 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए, जबकि हुकूमत ने सिर्फ 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। बाकी 25 करोड़ रुपए वासा को अपने जराए से हासिल करना होंगे। हुकूमत ने वासा को जाती रेवेन्यू बढ़ाने की हिदायत कर दी है। वासा सालाना 25 करोड़ रुपए जाती रेवेन्यू हासिल करेगा। वासा को अखराजात पूरे करने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा। वासा ने जाती आमदन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात शुरू किए। वासा ने शहर भर में सीवरेज कनेक्शन रजिस्टर्ड करना भी शुरू कर दिए हैं, जबकि सीवरेज कनेक्शन की रजिस्ट्रेशन से वासा को रेवेन्यू बढ़ेगा। डीजी पैरा का अहम फैसला, 1 साल से तैनात पैरा इन्फोर्समेंट अफसरान का ट्रांसफर कर दिया गया। डिवीजन भर में 25 इन्फोर्समेंट अफसरान का तकर्रुर और तबादला किया गया। तोबा टेक्सिंग से हमजा आरिफ शेख को इन्फोर्समेंट ऑफिसर फैसलाबाद सदर मुकर्रर कर दिया गया। फैसलाबाद सदर से मुजम्मिल अब्बास को फैसलाबाद सिटी में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि चक जुमरा से आबद अली को फैसलाबाद शहर ट्रांसफर कर दिया गया। लालिया से अक्सा रियाज समंदरी में तबादला कर दिया गया। अली हुसैन नाज फैसलाबाद सिटी से फैसलाबाद सदर ट्रांसफर। बुआना से आरिशा शफकत फैसलाबाद सदर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि 18 हजारी से आसिफ जावेद फैसलाबाद से सिटी ट्रांसफर कर दिए गए, जबकि डिवीजन भर में 25 इन्फोर्समेंट अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। आपको बताएं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद शहरियों का जोशो खरोश शदीदनी। फैसलाबाद डिवीजन में तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गुंबत खिजरा की शबी वाला झंडियों और नालैन पार्क से सजे बैनर्स और बैचेस की खरीदो फरोख्त, जबकि आशिकाने रसूल घरों, गली मोहल्लों और शाहराहों को सजाने में मसरूफ दिखाई दिए, जबकि प्रेस क्लब में महफिल मिलाद सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हयात तैयबा पर रोशनी डाली गई। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में फनपारों की नुमाइश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार, खताती के खूबसूरत नमूने भी पेश किए गए। फैसलाबाद में रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर भर के बाजारों में शहरी झंडियां, रंग बिरंगी लाइटिंग, नालैन मुबारक के बैजेस और दीगर आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों को कहना था कि वो अपने घरों, गली मोहल्लों और दुकानों को सजाने में मसरूफ हैं। 12 रबीउल अव्वल की खुशियां अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे।
ओवरटेक सिंह में भी 12 रबीउल अव्वल की आमद में सिर्फ 2 रोज बाकी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ बाजारों और स्टोर्स पर शहरों का रश बढ़ गया, जहां झंडियों, बैजेस और नालन पाक समेत आराइशी सामान की खरीदो फरोख्त जारी है। शहरी घरों, दुकानों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों और सब्ज झंडियों से सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। फैसलाबाद प्रेस क्लब में भी महफिल मिलाद का खुसूसी एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर प्रेस क्लब सरदार मोहम्मद बिलाल डोगर समेत क्लब के ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। महफिल मिलाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को खराज अकीदत पेश किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में फनपारों की खुसूसी नुमाइश भी सजाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए खताती के खूबसूरत नमूने पेश किए गए। फनपारों के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक और इस्लामी तालीमात को उजागर किया गया। DG FDA चौधरी आसिफ ने भी नुमाइश का दौरा किया। रबीउल अव्वल की आमद के काउंसिल तक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां और अकीदत के इजहार का सिलसिला जारी है। शहरी 12 रबीउल अव्वल को मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए पुरजोश हैं। जश्न विलादत की खुशी और मजहबी जोश और जज्बे का इजहार जंग में ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से रैली का इनेकाद। उलमा इकराम, मजहबी शख्सियात और आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। फसाए दुरूदो सलाम की सदाओं को गूंजती रहीं। जुलूस का जगह जगह वालहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निशावर की गई। रैली के दौरान अमन, इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम भी उजागर किया गया। जंग में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से मजहबी जोश और जज्बे के साथ रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज जंग सिटी से हुआ, जो सरगोदा से होती हुई शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर पहुंची। रैली अयूब चौक, सब्जी मंडी, रेल बाजार चौक और फवारा चौक से होती हुई दोबारा जंग सिटी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में उलमा इकराम, मजहबी शख्सियात और उम्मत मुसलमा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में सब्ज परचम और मजहबी कुतब उठा रखी थी। फिजा दरूद सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत के नारों से गूंजती रही। शुरका का कहना था कि ईद मिलादुन नबी मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी और अकीदत का दिन है। इस मौका पर वो अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। रैली के दौरान अमन, इत्तेहाद, भाईचारे के पैगाम भी उजागर किए गए। रबीउल का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। हम मिलादुन नबी का ये जुलूस निकाल कर आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद आलम इस्लाम के लिए अमन, अखुव्वत, भाईचारा और दयानतदारी का जनाब वाला पैगाम देती है। और ईद मिलादुन नबी के इस मौका पर जश्न के साथ साथ हमें आज के दिन तजदीद अहद भी करना चाहिए कि हम आज के दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत के सदका से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को, आपकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। रैली के रस्तों में शहरियों की बड़ी तादाद ने जगह जगह जुलूस का इस्तकबाल किया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगियों में अपनाते हुए मोहब्बत, अखुवत और अमन का पैगाम आम किया जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।